Hello and welcome. This is the fourth part of the chapter Politics of Planned Development. In the third part, we have discussed the outcomes of the planning process and the major controversies that were involved in the planning process. Now, in this part, I'm going to talk about two things mainly: Green Revolution and the White Revolution, and some alternate modes of planning which are there in your book in boxes. They are small boxes, but these become important because they are asked in your exams. Fine. So let's begin. First, I'll discuss the decentralized planning. This is the alternative model of planning, decentralized planning. I'm explaining something here. Understand it well because it has a reference to Niti Aayog, which is added up in your syllabus, which I would be discussing in the next video. Okay, so right, the Planning Commission represented the model of centralized planning. So planning was happening from a center. Okay, so Planning Commission was planning all the things, and then it was being sent. The plans were being implemented in different areas of the country. So everything is being planned here from one center. Fine. There are a lot of difficulties in this model of planning because somebody who's sitting in Delhi may not be well understanding the problems and the concerns of the different regions of the country as varied as India. ओके, तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में ये प्रॉब्लम है कि एक जगह से जब वो प्लानिंग हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट रीजन्स की जो नीड है उनको केटर कर पाए प्रॉपरली। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में ये होता है कि जो रीजन स्पेसिफिक प्लानिंग होती है। ओके, सो इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम और इसको कहते हैं बॉटम टू टॉप। ओके, तो ये है टॉप डाउन अप्रोच और ये है बॉटम अप अप्रोच। फाइन। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में जो प्लानिंग होगी वो लोकल लेवल्स पे होगी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। ओके, एंड देन these different plans of different states would be woven up, ये एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी में वीव किए जाएंगे। ओके, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग वो ये होती है। फाइन। सो केरला मॉडल रिप्रेजेंट्स अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। केरला ने अपनी तरह से अपनी एक स्ट्रैटेजी प्लान की एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म एंड इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। अब आप देखिए यहाँ पे भी जो उनका स्ट्रेस है that is to improve the quality of the human resource। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आपको सबको पता है, जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स है क्योंकि वो आगे आपका जीडीपी बढ़ाती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है। ओके, बट दिस पॉपुलेशन विल बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स if you invest in their education, if you make them technically and knowledge wise sound, if you stress on their health condition, if you introduce land reforms so as to increase their income and productivity, if effective food distribution system and poverty alleviation program implement किए जाएं तो यहाँ पे जो center of planning है that are the people। ओके, पीपल्स डेवलपमेंट, उनका जो जिस भी तरह से आप उनका डेवलपमेंट एज अ रिसोर्स कर पाए। So through this model, Kerala achieved total literacy that you all know, a long life expectancy, low infant and female mortality, low birth rates, high access to health care, which we all can see right now as well. Okay, so this is it takes initiative to involve people in making plans at the village and the block levels। तो ये जो plans हैं, जैसे कि अगर आप उनका health infrastructure देख लीजिए तो विलेज और ब्लॉक लेवल्स पे जो हेल्थ उनके जो सेंटर्स हैं वो फंक्शन करेंगे, वहाँ से जो नीड एंड रिक्वायरमेंट होगी दैट विल फ्लो अप एंड देन in a phase wise manner it will go to the state government and the state government will provide the facilities down। okay, तो ये होती है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो कि ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती है और अब जाती है। यहाँ पे जो फ्लो है दैट इज फ्रॉम डाउन टू अप। ओके,
in contrast to centralized planning, which is from up to down. Okay, so just keep in mind because I will refer to it in the next video of Niti Aayog. Fine. Now we come to one major component of the planning process, and that was the land reforms. So land reforms were implemented in India right after the independence because it was considered that we need to change the the total picture of agriculture in the country if we have to improve the productivity in agriculture. तो इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था और जो मेन एम था वो यही था कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करें. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यू विल हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लैंड. How to improve the quality of the land? For these, land reforms were introduced in the country. The major components of the land reforms were these four. These were the major components of the land reforms. ठीक है. इसमें सबसे पहला था abolition of zamindari. Now you have read about the zamindari system in your history books till class 8 also. तो जमींदारी सिस्टम क्या था? ये ब्रिटिश के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जिसमें कि जो जमींदार थे वो एक तरह से मिडल मैन का काम करते थे. ठीक है. तो उनके पास बड़े बड़े स्टेट्स होते थे, लैंड्स होते थे, बहुत बड़ा ज़्यादा लैंड इनके पास होता था जिसको ये टेनेंट्स को देते थे. ठीक है. टेनेंट्स मतलब कि वो छोटे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो इन लैंड्स को एक छोटी ज़मीन का टुकड़ा ज़मींदार से लेंगे, उसको कल्टीवेट करेंगे, उसमें से जितना प्रोडक्शन होगा उसका एक पार्ट which was usually 1/4 or 1/6 of the produce was given to जमींदार as the tax. अब जमींदार इसका जो कलेक्शन कर रहा है इसका एक पार्ट देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को. Okay, so zamindars were like the middlemen in this process, but they were holding large amount of land. अब इतना लैंड जब एक जमींदार के पास है तो उसका इंटरेस्ट लैंड में क्या है? उसका इंटरेस्ट लैंड में सिर्फ इतना है कि उसको एक भाग जो खेती का हुआ है वो मिल जाए. Zamindar is himself not interested in improving the quality of the land. Okay, and in other manner also it was creating, this system was creating a lot of inequality in the society. ठीक है. तो जो जमींदार थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे पॉलिटिकली भी, दे इट वाज अ वेरी पावरफुल क्लास एंड दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द टेनेंट्स, द फार्मर्स, द लैंडलेस peasants. Okay, so abolition of जमींदारी को एक मेन प्रोग्राम की तरह से लिया गया था इसमें, जिसमें कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने दे स्टार्टेड पासिंग लॉज रिलेटेड टू abolition of जमींदारी. अब इन लॉज में एक मेन प्रॉब्लम आ रही थी, राइट टू प्रॉपर्टी. So the first amendment of the constitution relates to amending the right to property to make effective this abolition of जमींदारी in the country. ठीक है. अब इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है. Excuse me. Then ceiling on land. Ceiling on land means the maximum amount of land that a person could hold. Okay. तो ये फिक्स कर दिया गया था कि क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड जितना कि एक आदमी होल्ड कर सकता है. उससे ज़्यादा अगर लैंड किसी के पास है देन इट वाज टेकन ओवर बाय द स्टेट. वो स्टेट उसको सीज कर लेता था. ठीक है. देन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब ये है कि मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 4 टुकड़े हैं ज़मीन के, 4 plots of land, 4 pieces of land. But these 4 pieces of land are scattered. तो एक लैंड का टुकड़ा यहाँ है, फिर करीब 20 मील दूर एक लैंड का टुकड़ा यहाँ है, फिर 5 मील दूर एक लैंड का टुकड़ा यहाँ है, फिर यहाँ है. ठीक है. अब इस छोटे छोटे टुकड़ों से क्या हो रहा है कि he is not able to do एग्रीकल्चर प्रॉपरली ऑन दिस लैंड. भाई अगर आपको एग्रीकल्चर किसी लैंड पे प्रॉपरली करना है तो कम से कम वो इतना बड़ा तो होना चाहिए जिससे कि आप उस पर हल चला सकें. ओके. जैसे कि आप उस पर ट्रैक्टर चला सकें. सो इंस्टेड ऑफ, एंड दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल आल्सो टू कीप एन आई ऑन ऑल द 4 पीसेस ऑफ लैंड. सो व्हाट वाज डन, ये रिफॉर्म्स किया गया था कि इन लैंड की जितना भी एरिया है उसके इक्वलेंट उसको एक जगह पे बड़ा लैंड दे दिया जाए. Okay, so this was called consolidation of land holdings. Fine. So this was a major reform. Then tenancy
टेनेंसी राइट्स, अभी आपको मैंने टेनेंट्स के बारे में बताया, तो जब जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया गया तो जो लैंड था वो टेनेंट्स उसको ऑलरेडी कल्टीवेट कर रहे थे। नाउ अब इसमें होता यह था कि जमींदारी सिस्टम के अंडर भी जो टेनेंट्स के राइट्स थे वो सिक्योर नहीं थे। अब कोई छोटा किसान है, वो किसी एक लैंड को 10 साल से कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन जमींदार उसको कभी भी उस लैंड से बेदखल कर सकते थे। अब अगर बेदखल कर दिया, उसको उस लैंड से हटा दिया, रिमूव कर दिया, देन क्या होगा, वो उस पुअर फार्मर के पास तो फिर कुछ भी नहीं बचा। ओके, और वो उस लैंड को उतने दिन से कल्टीवेट कर रहा है। तो टेनेंसी राइट में दो तीन चीजें इंक्लूड की गई थी। जो मेन चीज थी वो ये थी कि नंबर वन, दैट व्हाट विल बी द रेंट, जो रेंट जमींदार को वो पे कर रहे हैं वो 1/4 और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज वेरी हाई। तो इसको रिड्यूस किया जाए, नंबर वन। नंबर टू ये था कि इफ अ पर्सन इज कल्टिवेटिंग अ लैंड फॉर 6 years, फॉर 8 years, देन ही हैज राइट्स ओवर दोज लैंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उस टेनेंट को वो लैंड यूं ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो टेनेंट चाहेगा तो पेमेंट करके, कुछ पेमेंट करके वो लैंड वो खरीद सकता है। Okay, so there were many things that were included into these tenancy rights, and all these land reforms were introduced immediately after the independence, and throughout the 50s and 60s they continued. But these land reforms were not very successful. Mainly the ceiling of land and tenancy rights. ये दो components बहुत successful नहीं हो पाए थे। सीलिंग ऑफ लैंड में क्या हुआ था कि जब उन्होंने ये कहा कि एक पर्सन के नाम पे बहुत ज़्यादा लैंड नहीं हो सकता है, देन दे स्टार्टेड ट्रांसफरिंग द लैंड इन द नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो फादर है उसके नाम पे 1,000 एकड़ का लैंड है, उतना नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि 50-50 एकड़ का लैंड जो है वो वाइफ के नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो लैंड तो अभी भी फैमिली के पास ही है, फाइन। तो दिस वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। या तो फिर वो लैंड ट्रांसफर करते थे और फिर बेनामी करके उसको, बहुत से तरीके थे इससे बचने के लिए। उसके बाद टेनेंसी राइट्स में ये हुआ कि द जमींदार्स वर वेरी पावरफुल, दे हैड उनके पास, उस जमींदारों के पास लठैत वठैत हुआ करते थे, और जो पुअर फार्मर्स हैं उसके पास कुछ भी नहीं है, दे वर मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो ताकत के बल पे उनसे जो करवाना चाहते थे वो करवा लेते थे। Okay, so these two components of the land reforms were not very successful, and that was the main reason why the production in agriculture could not be increased substantially during that time. Okay. Now we come to another big thing, that was the green revolution. कह रहे हैं कि ये भी एक तरह का लैंड रिवोल्यूशन ही, लैंड रिफॉर्म ही था, बिकॉज जो जो पहला फेज था लैंड रिफॉर्म का, उसने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश की इन द फॉर्म ऑफ लैंड होल्डिंग्स, and the second phase was to improve the quality of land, and the quality of land was improved a lot by the green revolution. So green revolution is a topic that is asked for 6 marks. जो लैंड रिफॉर्म्स है वो 4 मार्क्स के लिए यूजुअली पूछा जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फाइन। तो ये 6 मार्क्स के लिए आता है। इट इज इजी बिकॉज यू हैव डन इट इन सोशल स्टडीज इन क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें वेरियस कंपोनेंट्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। इसमें सबसे पहले था कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ CHYV सीड्स, ट्रैक्टर्स, लाइक मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें मशीन यूज करिए, तो आप ट्रैक्टर्स यूज करिए, स्प्रेयर्स यूज करिए, थ्रेशर्स यूज करिए। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, तो ट्यूबवेल्स, जिन एरियाज में रिवर वाटर वगैरह की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे ट्यूबवेल्स वगैरह लगवाए गए। ओके, यूज ऑफ अ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, फाइन। सो ये इन सारे यूज से करना क्या था, प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था। मेनली फाउंडेड बाय MS स्वामीनाथन, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इनको माना जाता है। इट कमेंस इन इंडिया in 1958 and increased food production especially in पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। एक्चुअली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ये। तो इस एरिया में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। स्ट्रैटेजी ये थी कि इंस्टेड ऑफ trying to improve the agriculture productivity in the entire country, we stress on those areas which are relatively ahead than the others। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा इस रीजन में जो खेती थी वो बाकी रीजन से थोड़ा आगे निकल गई थी।
तो इसलिए यहाँ पे इसको स्ट्रेस किया गया और दो क्रॉप्स इसके लिए चूज की गई थी, दैट वाज व्हीट एंड राइस। ओके, तो व्हीट और राइस में स्पेशली ग्रीन रिवॉल्यूशन को थ्रस्ट दिया गया, फाइन। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिव के डालिए, दो पॉइंट्स नेगेटिव के डालिए, ये 4 पॉइंट्स और दो मार्क्स आपका हो जाएगा व्हाट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, so it led to an increase in agricultural production mainly in wheat. Punjab became the wheat basket of India. Fine. It led to a rise of middle peasant section. मतलब जो farmers की जो middle class थी, middle वो देखिए, अगर अभी तक जब तक जमींदारी सिस्टम था उसमें या तो फिर हायर क्लास थी, हाई क्लास जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, जमींदारों की क्लास, या फिर वो जो जो टेनेंट्स थे या लैंडलेस लेबरर्स थे। लेकिन यहाँ पे जो छोटे किसान थे उन्होंने मैकेनाइजेशन करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया, जिसकी वजह से उनके हाथ में इनकम आई। तो एक मिडिल पीजेंट सेक्शन इमर्ज होता है विच बिकम्स लेटर अ वेरी पावरफुल पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। और मैंने बताया आपको चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो ये इस रीजन के ही लीडर थे, फार्मर लीडर थे, जो बाद में पॉलिटिक्स में ही प्लेड अ वेरी मेजर रोल एंड हिज पार्टी आल्सो भारतीय लोकदल प्लेड अ वेरी मेजर रोल, जो कि इस सेक्शन से जिसका जन्म अगर हम देखें तो वो इस एरा को बिलोंग करता है जब ये मिडिल पीजेंट सेक्शन ग्रुप इमर्ज होता है इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ओके, then negative consequences increase polarization between classes and region। मीन्स ये जो ग्रोथ हुई ये बड़ी इम्बैलेंस हो गई। these regions grew, their agriculture became very advanced in comparison to other regions in the country like बिहार और उड़ीसा। बिहार में तो 60s में बहुत बड़ा ड्राउट आ गया, फूड ग्रेन क्राइसिस हो गया। ओके, so these regions became very rich, the gap between the rich and the poor increased, few states became prosperous while the others remained poor। एंड द अदर इफेक्ट ऑफ वो सॉइल पॉल्यूशन, जिसका इम्पैक्ट अब देखने को बहुत मिल रहा है कि इतना ज़्यादा यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हो गया है कि जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बहुत पोल्यूटेड हो गई है। ठीक है, और अब जैसा देखने में आ रहा है कि उतनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अब कोई चीज़ें वहाँ काम ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये अब जैसा आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुनते हैं जिसमें कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नेग्लिजिबल हो, अगर हो भी तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाएं। वाई? बिकॉज द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स had polluted, had led to soil pollution which ultimately goes into our body। ओके, और इसकी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। ठीक है, so this is the total positive and negative impact of green revolution. Now we come to white revolution. Now white revolution is important. It is given in the box and the person you see is here is Verghese Kurian. He is called the milkman of India. He was the person who initiated white revolution in Gujarat. Um, Amul Dairy Cooperative at Anand, Gujarat, started by Verghese Kurian. Best represents this model। ये मॉडल क्या था, इसमें आप ये समझ लीजिए कि आपने अभी कुछ पिछले वीडियोस में सुना होगा एक टर्म रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो दिस वाज वन ऑफ द मॉडल ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर ही एस्टैब्लिश्ड द मिल्क कोऑपरेटिव्स। जो वहाँ पे जो जिनके पास 2 गायें हैं, 4 गायें हैं, 6 गायें हैं, तो उनसे दूध को कलेक्ट करके, मिल्क को कलेक्ट करके फिर उसको प्रोसेस किया गया और उसकी प्रोसेसिंग से मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए लार्ज स्केल पे, जिनको मार्केट किया गया एंड देन प्रॉफिट वाज शेयर। अंडरस्टूड? तो इसकी वजह से जो रूरल डेवलपमेंट है, जो गांव के लोग हैं, उनके हाथ में एक्स्ट्रा इनकम गई, उनके हाथ में एक रेगुलर इनकम गई। एंड नाउ दिस हैज बिकम अ मेजर मॉडल इन द कंट्री। उसके बाद आपका ऑपरेशन फ्लड इनिशिएट किया गया। ऑपरेशन फ्लड में जो मिल्क कोऑपरेटिव्स थे, वो डिफरेंट रीजन्स के मिल्क कोऑपरेटिव को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। ओके, cooperatives of milk producers into a nationwide grid with the purpose of increasing milk
प्रोडक्शन। ओके, तो जब उन लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा इनकम जाती है, रेगुलर इनकम जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको फिर अपने जो काम है, बिजनेस है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं फर्दर, जिससे कि वो ग्रो करता है। Okay, so white revolution represents a model of rural industrialization, a very top model of rural industrialization, and Amul is right now a very big brand. Okay, and the origin of this brand is traced to this program of rural industrialization. Oh, fine. So this is all in this video. In the next video and the last video of the chapter, I'm going to discuss about Niti Aayog. Now, Niti Aayog is something added into your syllabus, and you should know about it because now the Niti Aayog has replaced Planning Commission. So Planning Commission of India, which you have been studying till now in the chapter, जो आपके chapter में पूरा आपने 4 वीडियोस मैंने उस पर बना दिए हैं और आपने इतना पढ़ लिया, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब जो एग्जिस्ट करता है वो नीति आयोग एग्जिस्ट करता है। तो ये लास्ट वीडियो होगा, एक वीडियो पूरा इसमें लग जाएगा बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन बिट दिस may be asked in your competitive exams as well, and you should know about what is Niti Aayog, what are its functions, objectives, composition, etc., etc. Fine. So do watch the last video, next video of the chapter as well, and thank you for watching it. Keep learning, keep studying. Bye bye.